राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर न मानै को मुँह सिराद कराही। पितर भी बपरे कहो क्यों पावै कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जग बिनसै कुशल भी कैसे होई। रहाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंग 332। श्रोमणी भगत श्री कबीर जीओ की बाणी राग गौड़ी दे विच राग गौड़ी बैरागण कबीर जी। बैरागण गौड़ी राग की जाति है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल। पातशाह कहते जीवत पितर न मानै को मुँह सिराध कराही। अर्थात जिउंदे जी तां पितर अर्थात पिता भाव माता पिता जां दादा दादी आदि वड्डे वडेरिਆਂ ਨੂੰ कोई पितर जां पूर्वज ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। भाव पुत पोतरिਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹੇ ਸਿਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਅਰਥਾਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਾਧ ਜਾਂ ਸਰਾਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਰਮ। ਅਰਥਾਤ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਔਰ ਵਸਤਰ ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਤ ਸਰਾਧ, ਨਮਿਤ, ਕਾਮੈ, ਵ੍ਰਿਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਵਣ ਸਰਾਧ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਵਣ ਸਰਾਧ ਪਿਤਰੀ ਪੱਖ ਅਰਥਾਤ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15ਵਾੜੇ ਭਾਵ ਅੱਸੂਵਦੀ 1 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਚਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ 'ਚ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 14 ਅਮਾਵਸ ਰਚ ਰਚ ਮੰਗੇ ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਪ ਪਰਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੇ 14 ਤੇ ਕਦੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਦੀਪਕ ਲੈ ਕੂਪ ਪਰਹੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਭਾਤ ਬਿਹਤਰ ਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਸਮੂਰਤ ਕੈ ਮੁਖਸ਼ਾਰ। ਭਾਤ ਕਦੇ ਚਾਵਲ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਮੰਗਦਾ ਪਿਹਤ, ਅਰ ਲਾਪਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਕੜਾਹ ਮੰਗਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕਸਾਰ। ਕਦੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਪਤੀਸਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਦੇ ਕਸਾਰ ਪੰਜੀਰੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪ। ਸੋ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਜਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਡਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਟੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਰਥਾਤ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤੀ ਖੋਲ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠ ਗਰਦਬ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ। 3.5 ਗਜ ਦੀ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਬ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੀ ਜਾਣਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਆ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤੇ ਸਨਾਨਾ ਛੁਰੀ ਕਾੜ ਲੇਵੈ ਹੱਥ ਦਾਨਾ। ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਪ ਦੀ ਛੁਰੀ ਫੜ ਕੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਲਵੇਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤਰ ਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਜੋੜਾ ਕਦੇ ਬਸਤਰ ਛਤਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਸੇ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਕਰਤੇ रूपी जजमान दे कोलों दैवी गुणां दीयां दातां मंगदे ने। महाराज कहंदे करता तू मेरा जजमान, कहंदे एक दक्षिणा हो तै पै मंगो देह अपना नाम रहाओ। पातशाह कहंदे जात सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती धान, दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मंगो दान। पातशाह कहंदे खिमा धीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिया, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक अवतर है। ये सारिया चीज़ां जिन्हां दा नाम लैके पातशाह परमेश्वर तो दैवी गुणां दीयां दातां मंगदे ने इस बचन दे विच, जिवें कणक चौल दुध घिओ कपड़ा गां ते वछा आदि। ब्राह्मण जजमानां दे कोलों दक्षिणा दे रूप च सारिया चीज़ां लुट के लै जांदा सी और दावा करदा सी कि तुहाडा भोजन जां प्रशादा तुहाडे पितरां ताईं पहुँच चुका पड़ चुका है। जिहदा पाज उघेड़दियां कबीर जी इस बचन च किरपा करदे ने। कहंदा जीवत पितर न मान को मुँह सिराध कराही, पितर पी बपरे कहो क्यों पावै कौआ कूकर खाही। पितर पी बपरे कहो क्यों खावै, पितर अर्थात पूर्वज भा मर चुके बजुर्ग भी बपरे अर्थात विचारे, कहो क्यों पावे दसो खा महाराज कहंदे भला किवें प्राप्त कर लैणगे तुहाडे पितर। ब्राह्मण के द्वारा उन्हां दे नाम ते कढ़िया होया भोजन सगों वो तां महाराज कहंदे सारियां दे सामने कौआ कूकर खाही कां ते कुत्ते आदि खा गए। पातशाह कहंदे आसा राग च धन गुरु नानक देव महाराज जियां दा बचन है। कहंदे एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए। इस दे मुताबक पहला पिन्ना देव लोकियां अर्थात देवतियां दे निमित्त, होर शमशरी ते दूसरा पिन्ना शमशरी अर्थात क्षमाचरी अर्थात धरती ते विचरण वाले बजुर्ग। कहा जाता सी कि सराधां दे 15 दिन जिहड़े बजुर्ग ने पितर लोक छड्ड के धरती ते विचरदे ने, अपने पिछले घरां दे विच परिवारां दी सार लैण आउंदे ने। महाराज कहंदे दूसरा पिन्ना शमशरी अर्थात पितरां दे निमित्त कढ़िया जांदा है। ते फिर महाराज कहंदे भोजन आप छकदा सी ब्राह्मण पितरां दे निमित्त कढ़ण तो बाद, और जिहड़ा पितरां दे निमित्त कढ़िया जांदा उहनूं छकाउण दे लई उचेचे तौर ते कावां ते कुत्तिआं नूं आवाज़ां मारीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ सन, सद्दिਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मलार राग दे विच पहले पातशाह जी दा बचन है। कहंदे आया गया मोया नाओ पिछा पत्तल सद्दे हो काम, कि जीव आके तुर गया तो ना हो गया मोया। तो पिछों मारे कहते उन्होंने दे निमित्त कढ़े भोजन नूं छकाउण दे लई कावां नूं आवाज़ां मारदे सन। कां कुत्ते कीड़ी गऊ ते गरीब नूं छकाउण दा विधान सी शास्त्रां दे मुताबक। शास्त्रां 'च इन्हां नूं पंज बली कहंदे ने, पंज बली। सो कावां कुत्तिआं नूं परोस के जजमानां नूं आख देना कि तुहाडे पितरां ताईं अपड़ चुका है। ये बहुत वड्डा धोखा सी जो अज ताईं हो रहा है। श्राप वाले कारज श्राद्ध वाले कारज की संपूर्णता जां इस लुट खसुट तो बाद ब्राह्मण ने जजमानां नूं भरोसा दिवाउणा है कि सब कुशल मंगल है। जिस ते हैरानी प्रगट करदिआं कबीर जी कहंदे ने राहो वालियां पंक्तियां 'च किरपा करदे, कहंदे मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसा, कुशल भी कैसे होई रहाओ। मौका कुशल बतावो कोई, मैनू कोई श्राद्ध रूपी लुट कारज तो उपरंत परिवार दे विच वरतण वाली कुशलता जां सुख आनंद की विधि तां दसो। कबीर जी कहंदे कि किवें कोई लुटे जाण तो बाद भी कुशल हो सकदा है, सुखी हो सकदा है। कहंदे मौका कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल कर दे जग बिनसा, कुशल भी कैसे होई। बड़े दुख की बात है कि सदियां तो ऐसे पखंड कारजां की पूर्ति उपरंत कुशल कुशल आखण के बावजूद भी सारा जग मारे कहते दुखों च बिनसी जाता है। तो इन्हां अंधविश्वासी कारजां दे नाल भला कुशल जां सुखी कोई हो भी किवें सकदा है? पातशाह कहंदे नहीं हो सकदा है। महाराज तां कहंदे ने आपे बीज आपे ही खा हो, जां फिर पातशाह कहंदे हुण वत्ता हर नाम ना बीजिओ अगे भुखा क्या खाए। पूरा वत्ता नाम का बीज बीजण का कलयुग है। हुण तू नाम का बीज बीजदा नहीं, अगे तैनूं भुख भी लगनी है। पर लोक दे विच सूखम शरीर 17 तत्तां दा जिहदे च 5 प्राण हुंदे ने जिन्हां नूं भुख प्यास लगदी है। महाराज सुखमनी साहिब च भी कहंदे ने जेह मार्ग के गने जाहे ना को सहार का नाम मुँह संग तोसा। जिहड़े मार्ग दे को भी नहीं गिने जाते उत्थे मारे कहंदे केवल नाम नहीं तेरा तोसा बनना है। इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसम सुहेला कहंदी है गुरु पातशाह दी बाणी।
परंतु इन्नी करड़ी ताड़ना के बावजूद भी दूसरे सारे वहमां भरमां दे वांग सराध रूपी वहम का प्रकोप भी अजे तक संसार के उपर हावी है। बेशक धन गुरु नानक देव महाराज जी ने आसा जी की वार दे विच भी पितरां तक भोजन पहुँचाउण दा दावा करने वाले दलाल ब्राह्मण के हत्थ वड्डे जाण की गल कीती। महाराज कहंदे जय मुहाका घर मोहे पितरी दे। कोई मुहाका अर्थात ठग जां चोर किसी का घर लुट के अपने पितरां दे निमित्त दान करदा श्राद्ध करदा। मारे कहंदे आग्या वस्त सियाणियां पितरी चोर करे ते चोरी दियां दातां जड़ियां ने वस्तां ये ते अगे पछाणियां जाणियां ने। जिन्हां दे पुत्तां पोतरियां दे कोलों चोरां ने लुट के श्राद्ध कीता उन्हां दे दादे पड़दादे भी बैठे ने दरगाह च पितर लोक दे विच। उन्हां ते मारे कहंदे पछाण लैणियां चीज़ां के फलाना सैं ते तेरे पोतरियां ने मेरे पोतरियां कोलों लुट के तेरे निमित्त श्राद्ध कीता है। महाराज कहंदे वड्डिया हत्थ दलाल के मुसफी ए करे। ते दलाल जिहड़ा कहंदा मैनूं दो मैं तुहाडे बजुर्गां ताईं पहुँचाउणा पितरां ताईं पहुँचाउणा उहदे हत्थ वड्डे जाणे ने। इंसाफ ये होना नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे। अगे दरगाह च पितर लोग तो भाई उही कुछ मिलता है जो दसां नौवां की किरत दे विचों अपने जींदे जी दे जाइए। सो किसी ठग चोर की किरत ते किंतु करन दी बजाय ब्राह्मण के द्वारा केवल उसनूं श्राद्ध दे लई ही परपक्क कीता जांदा सी। होर की कुछ कीता जांदा सी। महाराज कहंदे माटी के कर देवी देवा तिसे आगे जियो देही। ऐसे पितर तुम्हारे कहिया अपन कया न लेही। दूसरे चरण च पातशाह कृपा करते ने माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही। सनातनी मत के मुताबिक श्राद्ध का संबंध केवल खानदानी वड्डे वडेरियां तक सीमित नहीं सगों इस विच इष्ट देवां की पूजा की जाती है। जिथे पितरां दे निमित्त दक्षिण वाल नूं मूँह करके तर्पण किया जाता जल दे अर्घे दिते जाते ने उत्थे देवतियां दे निमित्त पूर्व वाल मूँह करके तर्पण किया जाता है। जिवें पितरां दे निमित्त उन्हां दी तस्वीर अगे खीर कड़ाह पूड़ी कचौरी आदि अर्पण की जाती है उवें किसी देवी देवते दे निमित्त उसकी मिट्टी की मूर्ति बना के उस अगे बलि तक दी जाती सी। महाराज कहंदे माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही। कहंदे ऐसे पितर तुम्हारे कहिए अपन कया न लेही। ऐ भुल्लड़ लोको इहो जिहे कहे जाते ने तुहाडे पितर। पातशाह कहंदे इहो जिहे कहे जाते ने तुहाडे पूर्वज वड्डे वडेरे जो अपना कया मारे कहंदे खुद नहीं लै सकदे अपन कया न लेही। खुद अपनी इच्छा अनुसार सीधा तुहाडे कोलों कुछ मंग भी नहीं सकदे जिहड़े सगों दलाल ब्राह्मण दे राही लैंदे ने। पातशाह कहंदे कहण तो भाव है कि असल दे विच असलीयत तां यह है कि सारियां कामनावां तुहाडे पितरां दियां नहीं। पातशाह कहंदे सगों खुद ब्राह्मण दियां आपदियां हन जिसदा खमियाजा लोकां ते ब्राह्मण दोहां नूं भुगतना पैना। महाराज कहंदे सर जियो काटे निर जियो पूजै अंत काल को भारी। राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। तीसरे चरण च बचन दे महाराज कृपा कर दे सर जियो काटे निर जियो पूजे अंत काल को भारी। जेड़े सरजीव अर्थात जानदार जीवां नूं कट दिंदे ने भाव वढ़ दिंदे ने। निर्जीव अर्थात बेजान मिट्टी की मूर्ति की खातर उसकी पूजा हित उन्होंने पातशाह कहते अंत काल को भारी। अंत समय भारी मुश्किल का सामना करना पवेगा लेखा देना पवेगा। राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। जिन्हां संसारी लोगों ने राम नाम की गत अर्थात अवस्था नूं जानिया ही नहीं भाव नाम जप के सहज अवस्था के आनंद नूं भोगिया ही नहीं। वो पातशाह कहते भै डूबे संसारी अर्थात सारी उम्र संसारी भै च डुबे रहे कि जेकर मैं आ कर्मकांड ना किया तो संसार की कहेगा, जे आ कर्म ना किया तो जग की कहेगा। ना चाहते हुए भी कायर बुजदिल डरपोक जां डराकड़ लोकां वांग संसारी रीतां नूं निभाउंदे रहे तो डोलते रहे। पातशाह कहंदे अगले चौथे चरण च महाराज कृपा करन लगे कहंदे देवी देवा पूजा डोला पार ब्रह्म नहीं जाना। कहद कबीरा कुल नहीं चेतया बिखिया स्यों लपटाना। देवी देवा पूजा डोला पार ब्रह्म नहीं जाना। सारी उम्र एक अकाल पुरख वाहिगुरू की पूजा छड्ड के सगों देवी देवतियां की पूजा ही करते रहे अते डोलते रहे पर महाराज कहंदे पार ब्रह्म नहीं जाना।
पार ब्रह्म नूं जानण दा जतन ही नहीं कीता सारी उम्र। पातशाह कहंदा कहत कबीर कुल नहीं चेतिया विखिया स्यों लपटाना। कहंदे ने कबीर पातशाह कि ऐ इंसान कुल देवते जां कुल च पैदा होए पितर जां पूर्वज की पूजा तो करदा रहे सारी उम्र, पर कुल तो रहा तो कुल परमेश्वर का चेता ही नहीं किया तू सारी उम्र। सगों महाराज कहते विखिया स्यों लपटाना विषयां दे नाल चंबड़िया रहा सारी उम्र। सो भाई कुल मिला के आख्या जा सकता है कि मर चुके पितरां दे उधार दी केवल इको एक विधि है, वह है नाम। जां ते जिउंदे जी आप जप जाण जीव, जां फिर प्रहलाद जी वांग उन्हां दी कुल दे विच कोई बहुत प्रतापी पुरुष पैदा हो के उन्होंने परमेश्वर तो बख्शा लवे। जिमें माता जी ने धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा सी, कहते जय समर्थ सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत न पारो, पूता माता की असीस निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सहारी मल जी के पुत्र के विआह जान लगे धन गुरु अर्जन पातशाह जो माता जी को नमस्कार करन गए सन तो माता जी ने आशीर्वाद दिता सी, कहंदे जय समर्थ सब किल विख नासे पितरी होए उधारो, कि जेड़े परमेश्वर का सिमरन कीतियां सारे पाप हरण हो जाते ने ते मर चुके पितरां का भी उधार हो जाता है। माता जी ने आख्या सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत ना पारो, ते तुसी सदा ही उस हरि हरि का जाप करते रहो जिहदा कोई अंत ते पारावार नहीं। कहंदे पूता माता की असीस, ये पुत्र मेरी माता की इहो असीस है, तेनों निमख ना बिसरा तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। एक निमख भी तेथों हरी हरी विसरे ना, तू सदा ही जगदीश का भजन करता रहे। सो पितरां दे उधार की विधि श्राद्ध नहीं सगो नाम है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।